بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج کی کہانی ایک درویش کے متعلق ہے۔ وہ اکیلا حج کے لیے نکلا، لیکن راستے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ کیسے پرندوں نے اس کے قتل کی گواہی دی اور اس کے قاتلوں کو پکڑوایا، سارا کچھ اس کہانی میں آگے سنیے۔ پرانے زمانے میں ملک ایران کے ایک شہر میں ایک نیک اور عارف شخص رہتا تھا جس کا نام دانا دل تھا، لیکن اکثر لوگ اسے درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ گرد و نواح کے لوگ بھی اسے پہچانتے تھے اور اس کے پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس درویش نے ایک سال حج کا ارادہ کیا اور کہا، میں حجاج کے قافلے سے پہلے روانہ ہو جاؤں گا، راستے میں آنے والے شہروں میں گھوم پھروں گا اور حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا۔ پس درویش نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور چل پڑا۔ اس کے پاس کپڑوں کا ایک معمولی سی گٹھڑی اور تھوڑا سا سفر خرچ تھا۔ اس سال حج کا مہینہ موسم گرما تھا اور دانا دل 9 روز سے پہلے اس مبارک سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ دل کو سفر کرتا اور رات کو راستے میں کسی آبادی میں قیام کر لیتا۔ ابھی اس کے سفر کا تیسرا دن تھا کہ ایک قافلہ سرائے میں جا پہنچا جو اس وقت کھنڈر بن چکا تھی اور چوروں اور ڈاکوؤں کا مسکن تھی۔ اس وقت بھی یہاں ڈاکو ٹھہرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے جب درویش کو دیکھا کہ ایک گٹھڑی اس کے کندھے پر ہے تو بے حد خوش ہوئے اور دل میں کہنے لگے، یہ اکیلا ہے اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بیچارے درویش کو پکڑ لیا اور اس خیال سے کہ ان کا مقابلہ کرے گا اسے مارنے پیٹنے لگے۔ درویش نے جب اپنے آپ کو گرفتار دیکھا تو سب سے پہلے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور کہا، صبر کرو، میں اکیلا ہوں اور تم چند نفر ہو، اس لیے میری بات سن لو، اس کے بعد جو چاہو وہی کر گزرنا۔ چوروں نے کہا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، تم اپنی چرب زبانی سے ہمارے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ درویش نے کہا، نہیں، میں کسی ہیلے سے کام نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، میرا لباس بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں ایک درویش ہوں اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اس لیے مجھے اذیت دینا جوان مردی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ تمہارا کام ڈاکہ زنی اور چوری ہے، بہتر ہوگا کہ ایسے شخص سے الجھو جس کے پاس زیادہ مال ہو اور مجھ مسکین کو معاف کر دو۔ چوروں نے جواب دیا، اے درویش، ہم نے اپنا نام چور رکھا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے سامنے روسیہ کر دیا ہے، ہمیں کسی شخص کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دولت مند ہے یا درویش، بلکہ جس سے اور جہاں سے بھی ہمارے ہاتھ کچھ آتا ہے چھین لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم خوبی اور بدی کا سوچتے تو کوئی کام دھندا کرتے، روٹی کماتے اور شرافت پسند ہوتے۔ درویش نے کہا، بہت بہتر، اب تم سے زیادہ بحث فضول ہے، یہ میں ہوں اور یہ رہی میری گٹھڑی، میرے پاس تھوڑا سا سفر خرچ ہے، وہ بھی لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ میں چلا جاؤں، اور جس سختی اور دشواری کا سامنا ہوگا اپنی خواہش پوری کروں گا جو کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ چوروں نے کہا، عجیب طرح کے سادہ مرد ہو اور ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، اگر تمہیں چھوڑ دیا تو تم لوگوں کے پاس جا کر انہیں ہمارا ٹھکانہ بتا دو گے اور ہمیں گرفتار کرا دو گے، بہتر یہی ہے کہ تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتا دو اور آخری دعا بھی کر لو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारा आखिरी फैसला यही है कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बायस बदबख्ती होगा, और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, उससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जड़ लिए जाओगे। चोर कह हंसने लगे और कहा, ऐ लुकोदक, सहरा में अदालत का पंजा कहाँ है, और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सजा कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यही खत्म हो जाएगा। चोरों ने अपना खंजर खींचे, उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को उनसे रहम की कोई तवक्का न थी। उसकी मिसाल उस शख्स की मानंद थी जो खतरे में गिरे होते हैं और हैरान और परेशान चारों तरफ देखते हैं। इसलिए वो मुंतज़िर था कि कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की उम्मीद दिखाई न दी। अलबत्ता उनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था, जिनकी जैक जैक की आवाज़ों से कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई देती थी। दरवेश ने नाउमीदी की हालत में परिंदों को देखा और कहा, ऐ परिंदों, देखो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथों में गिरफ्तार हूँ, और सिवाय अल्लाह ताला के कोई दूसरा हमें देख नहीं सक रहा। ऐ परिंदों, गवाह रहना और इन जालिमों से मेरा इंतकाम जरूर लेना। चोर दरवेश की बातों से हंसने लगे और उससे कहा, तुम वाकई सादा लो इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, दाना दिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब नाम है, दाना दिल, लेकिन तुम खुद ऐसे नादान और अहमक हो कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और उन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। उसके बाद भी दरवेश से मजाक करने लगे और आखिरकार उसे कत्ल कर दिया। चोरों को भी उसकी बातें याद आई तो हंसने लग जाते कि दाना दिल ने किस तरह परिंदों से दरख्वास्त की थी कि इसके खून का बदला लेंगे। दूसरे दिन चंद मुसाफिर उसी रास्ते से शहर आ रहे थे। उन्होंने जब दरवेश की लाश देखी तो नहायत एहतराम से दफन कर दी। जब उसके कत्ल की खबर शहर में पहुंची तो सब बेहद गमगीन हुए और उसकी बख्शिश की दुआ करने लगे। क्योंकि इस दरवेश ने किसी से बुराई नहीं की थी और इसका कोई दुश्मन भी ना था, इसलिए किसी पर शक ना गुजरा कि कातिल कौन है। अलबत्ता अक्सर लोग इस इंतजार में थे कि कातिल जरूर पकड़े जाएंगे और बेगुनाह का खून उनके दामन पर ज़ाहिर हो जाएगा और वो रुस्वा होंगे। कुछ अरसा गुजरा और वो रोज आ गया। उस दिन शहर के सब लोग हस्बे मामूल सहरा में जाया करते थे और सैरो तफरीह किया करते थे और दस्त बदस्ता सब्जाजार में दरख्तों के साए में इकट्ठे बैठते थे। इत्तफाक से चोरों का दस्ता भी सहरा में आया हुआ था, जो दरवेश के कातिल थे और बड़े दरख्त के नीचे एक कोने में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। उनके करीब चंद बच्चे भी एक दूसरे दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। कोई शख्स चोरों को नहीं पहचानता था, क्योंकि चोर भी दूसरे लोगों की मानंद ही थे। उसके अलावा दरवेश के कत्ल का वाक़या भी लोगों के जहन से उतर गया था। अब तो कोई शख्स उसे याद भी न करता था। इत्तफाकन उस दिन जबकि मौसम बेहद सुहाना था, चिड़ियों का एक दस्ता उड़ते हुए आया, दरख्तों पर बैठता और फौरन उड़ जाता। इसी तरह दूसरी कई चिड़ियाँ भी जैक जैक करती आती, दरख्तों पर जमा होती और शोरगुल करती और उड़ जाती। इसलिए जो लोग दरख्तों के नीचे बैठते थे उन्हें उड़ा देते, लेकिन वो फिर जैक जैक करते हुए एक शाख से
दूसरी शाख तक जा बैठती। अब तो चिड़िया उस दरख्त पर जा बैठी जिसके नीचे उन चोरों और कातलों ने डेरा लगा रखा था, और वहां भी जैक जैक शुरू कर दी, बल्कि उन पर फिजला भी कर दिया। इतने में एक चोर ने कहा, इन परिंदों को देखो, किस तरह शोर मचा रखा है। एक चोर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि गोया दरवेश की फूल का मुतालबा कर रही है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये चिड़िया हैं और उस जगह सारस थे। दूसरे ने कहा, सच तो ये है कि दरवेश कितना सादा लौ था जिसने अपने कत्ल का परिंदों को गवाह बनाया था। चोर इसी तरह की बातें कर रहे थे और इर्द गिर्द के लोगों से गाफिल थे, लेकिन उस दौरान दरवेश के हमसायों ने चोरों की बातें सुन ली थी, इसलिए एक दूसरे से कहने लगे, एक चीज है, ये लोग चिड़ियों को देखकर दरवेश और उसकी मौत के जिक्र में लग गए हैं। लाजमी तौर पर इस कत्ल के मुतल्लिक कुछ न कुछ ये जानते हैं। बहरहाल मालूम होना चाहिए कि दरवेश के कत्ल, इन चिड़ियों और इन लोगों की बातों का एक दूसरे से क्या राब्ता है। उन्होंने फौरन उस दिन की ड्यूटी पर मामूर चौकीदारों और पुलिस के अमले को इत्तला दे दी। इसलिए चोरों का दस्ता गिरफ्तार हो गया और तहकीक के लिए भेजा गया। चूँकि हमेशा बुरे लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, इसीलिए उन्होंने कत्ल का इकरार कर लिया और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। आखिरकार बेगुनाह का कोई रंग ले आया और हवा में उड़ने वाले परिंदों ने गवाही देकर अपना फर्ज अदा कर दिया और चोर अपने अंजाम को पहुंच गए। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।